وہ اسے دیکھتے ہنستی رہی۔ وہ اسے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے صدر دروازے کی جانب بڑھی۔ میں تمہاری لیے آگ میں کودنے لگا تھا۔ التمش کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ التمش کے بات پر رک گئی تھی۔ مڑتے ہوئے سے دیکھا، التمش کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا۔ شاید اس کا زخم ادھر گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ بنگلے کے باہر مزید گاڑیاں آ کر رک گئی تھی۔ التمش نے گاڑی سے فرحات درانی کو نکلتے دیکھا۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ سب گھومتا محسوس ہوا۔ وہ دیوار سے پشت جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بغیر سہارے کے وہ گر جاتا۔ فائر الارم کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ باہر سے آتی آوازیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زمر اس کے قریب آ گئی۔ اتنے قریب وہ اس کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اسے چھو سکتا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ اس الارم کو بند کر دو پلیز۔ التمش سر کو جکڑے کراہا۔ وہ بے حسی سے اسے دیکھتی رہی۔ سرمئی آنکھوں میں نہ تشویش تھی نہ پشیمانی۔ مجھے افسوس ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں پوری کوشش کروں گی پولیس تمہیں ہارم نہ کرے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی۔ التمش سر پر ہاتھ رکھے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 2 سوال پوچھے ہیں تم نے مجھ سے؟ وہ اس کے بے حد قریب آ گئی۔ التمش کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ التمش کو پہلی بار زمر کے چھونے پر کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھ چھٹکنا چاہتا تھا مگر چھٹک نہ پایا تھا۔ تو میرے لیے آگ میں کودنے لگے تھے نا التمش؟ وہ التمش کے زخمی پیشانے پر انگلی پھیرنے لگے۔ التمش سے بازو سے جکڑے دیوار کے ساتھ سختی سے لگا کیا۔ تمہیں مجھ سے ذرا محبت نہیں ہوئی؟ آگ میں کودنے لگا تھا میں۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ التمش بات مکمل نہ کر سکا تھا۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ داخلی دروازے کی جانب پولیس کی ٹیم آ رہی تھی۔ وہ سامنے نظر آتی گلاس والز کے پار دیکھ سکتا تھا۔ التمش کو سانس آنے میں دقت ہوئی تھی۔ وہ زمر کو سختی سے دیوار سے لگائے رہا۔ آگ میں کودنا تمہاری چوائس تھی۔ مجھ سے محبت کرنا تمہاری خواہش تھی۔ اس نے زمر کو کہتے سنا، تم میری کبھی چوائس نہیں رہے التمش۔ میں کیا چاہتی تھی تم روز اول سے جانتے تھے۔ مجھ جیسی عورت سے محبت کرنا تمہارا جرم تھا۔ اسی جرم کے تمہیں آج سزا مل رہی ہے۔ وہ ساکن سائے سے سن رہا تھا۔ میرے خواب دیکھے تھے اگر تم نے تو تم خود کو میرے قابل بناتے۔ پھر میرے خواب دیکھتے مٹی اور پتھر سے بنے گھر میں تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے اس اذیت اور بے بسی کے جو میں نے ہر پل تمہارے پاس تمہاری قربت میں محسوس کی۔ وہ زہر خن لہجے میں کہہ رہی تھی۔ التمش کا اپنے زخم ادھرتے محسوس ہوئے۔ سینہ چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ اس مٹی کے کمرے میں لکڑی کی چارپائی پر تمہاری آغوش میں مجھے ایک لمحے کو بھی سکون نہیں ملا۔ مجھے اس کمرے کی وسان سونے نہیں دیتی تھی۔ مٹی کی مہک تھی، تمہیں اچھی لگتی تھی، مجھے صرف بدبو آتی تھی۔ وہ تم تھے جسے گہری نیند آتی تھی۔ میں تمہاری آغوش میں سو بھی نہیں پاتی تھی۔ میرے بارے میں تم نے کبھی نہیں سوچا۔ تمہیں میں چاہیے تھی اسی گھر اسی کمرے میں، بس اپنی باہوں میں اپنے قریب میں تم مجھے چاہتے تھے۔ میری خواہشات بلند تھی، میری اڑان اونچی تھی مگر تم ایک معمولی گارڈ تھے۔ وہ لفظوں کا زہر التمش کے سینے میں اتار رہی تھی۔ التمش کو اپنے سینے پر بھاری دباؤ محسوس ہوا۔ میں گڑ گڑاتی رہی تمہارے آگے، روتی رہی، مجھے میرا حق دلا دو، مگر تمہیں اپنی خودداری سے عشق تھا۔ تم نے مجھ سے کبھی عشق کیا ہی نہیں۔ وہ ہر الزام اس پر ڈال چکی تھی۔ تم نے میرے لیے اپنی خودداری قربان نہیں کی۔ تم نے جو کیا اپنے لیے کیا، اپنے لیے کیا میں نے۔ التمش کی آواز آرزدہ تھی۔ ہاں، تم نے اپنے باپ کو تب قبول کیا جب میں تمہارے پاس نہ رہی، صرف اپنی تسکین کے لیے، جن آسائشوں کے لیے میں دن رات تمہارے آگے بھیک مانگتی تھی، وہ اب تمہارے پاس ہیں۔ تو میرے سامنے آ کر مجھے چھوٹا محسوس کروانا چاہتے تھے۔ اگر یہ سب میرے لیے تھا تو اتنے مہینے مجھے کیوں ڈھونڈا؟ تو میرے پاس واپس کیوں نہیں آئے؟ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا التمش۔ میں جھک گیا تھا زمر۔ میں نے اشیر ملک سے بات کر لی تھی مگر تم ایک دن اور صبر نہ کر سکی۔ مجھ پر گھٹیا الزام لگائے، میرے گھر میں رہتے میری آنے والی نسل کا قتل کرتی رہی۔ وہ پھولتے تنفس کے ساتھ چلا اٹھا تھا۔ ایک دن کی بات کرتے ہو، مہینے گزارے تمہارے ساتھ۔ میں روتی رہی، اپنا حق لینے کی بات کرتی رہی۔ تم نے میری ایک نہیں مانی۔ تم نے کیا کیا؟ مجھے خود غرض عورت کہہ کر خاموش کروا دیا۔
मुझे एक आम औरत बनने पर मजबूर किया। मैं एक आम औरत नहीं हूँ अल्तमिश, वो भी चिल्लाई थी और अल्तमिश के सीने पर हाथ मारकर खुद से दूर किया। वो लड़खड़ाते हुए इससे दूर हो गया। तुम्हारा बच्चा क्यों पैदा करती मैं, जब मुझे मालूम था तुम्हें इसे कुछ नहीं दे सकते। मैं अपने बच्चों को गरीबी की जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती। मुझ जैसी मादा परस्त औरत से उम्मीद लगाना तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। लकड़ी का दाखिली भारी दरवाजा अब बाहर से तोड़ा जा रहा था। अल्तमिश ने गर्दन घुमाते शीशे के पार देखा, पर हाथ दुराने पैन की जेबों में हाथ डाले गाड़ी के पास खड़ा था। उसकी आंखों में वो फतह की चमक देख सकता था। अल्तमिश को अपना वजूद बारूद में दहकता महसूस हुआ। वो जिमर को कलाई से जकड़े तेजी से आगे बढ़ा। छोड़ो मुझे अल्तमिश। वो हलक के बल चीखती हुई से अपनी कलाई छुड़वा रही थी। सेव मी, ही इज एनिमल, ही इज क्रिमिनल। वो चीखते हुए खुद को छुड़वा रही थी। अल्तमिश से लिए एक कमरे में दाखिल हुआ। सिमर को अपनी सांस तब बंद होती महसूस हुई जब वो दीवार पर लगे आईने पर हाथ रख गया। वो खुलता चला गया। वो दीवार की आईना नहीं, दरवाजा था। अल्तमिश से लिए तहखाने की जीने उतरने लगा। अल्तमिश, वो खौफ से चीख रही थी। खुद को छुड़वाते हलकान हो रही थी। वो बेदर्दी से जकड़े जीने उतरते चला गया। जीने उतरते इसने जिमर को पूरी कुव्वत से फर्श पर पटक दिया था। वो ऊंधे मुंह लकड़ी के फर्श पर जा गिरी थी। जिमर ने सीधे होते देखा। वो स्टोर नुमा जगह थी। यहाँ लकड़ी का कुछ काट कबाड़ पड़ा था। अल्तमिश आखिरी जीने पर बैठा था। दर्द से चूर अपनी पेशानी को जकड़े हुए था। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें कैद करके रखना पड़ा रखूंगा। वो चीखते हुए अपने सर को जकड़े हुए था। मैंने तुम जैसी औरत से क्यों मोहब्बत की। वो अपना सर पीटते अब मातम मना रहा था। जबर ने पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया। वो फर्श से उठते तेजी से अल्तमिश की तरफ बढ़ी। अल्तमिश सर हाथों से उठाते तहीर जदा हुआ था। आंखों में बेयकीनी थी। वो बेयकीनी एक पल के लिए ही थी। वो इसकी हर बेयकीनी तोड़ती चली गई। वो अपने हाथ में पकड़ा डंडा अल्तमिश के सर पर मार चुकी थी। वो कराह कर रह गया था। दिमाग घूम कर रह गया था। वो सर को दोनों हाथों से जकड़े इसके कदमों में ऊंधा मुंह कर गया था। जिमर भागते हुए जीने चढ़ने लगी। अल्तमिश ने इसी लम्हे जिमर की पिंगली को एक हाथ से जकड़ गया था। जिमर के लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई। अल्तमिश इसे पिंडली से जकड़े नीचे की जानिब खींच गया था। वो मुंह के बल जीनों पर ही गिर गई थी। पेशानी आखिरी जीने पर आकर लगी तो जिमर की पेशानी से खून बहने लगा। जिमर पीछे को होते दीवार के साथ जा लगी। रोती जा रही थी। वो इसके सामने खड़ा था, लकड़ी का डंडा हाथ में पकड़े इसे खून उतरी निगाहों से देख रहा था। इसकी सफेद ड्रेस शर्ट खून से तर थी। सर से खून बहता इसके चेहरे को तर किए हुए था। जिमर खौफ से अब सहमी सी से देख रही थी। अल्तमिश ने वो डंडा पूरी कुव्वत से जिमर को मारने के लिए उठाया। वो सर पर दोनों हाथ रखे रोने लगी, चीखने लगी, इससे माफिया मांगने लगी। वो गहरे सांस लेता रह गया था। वो डंडा जिमर खान को न मार सका था। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए। जिमर दोनों हाथ जोड़े सिसक रही थी। अल्तमिश को इस पर तरस नहीं आया था। वो एक ऐसी औरत थी जो गिरगिट की तरह रंग बदलती थी। वो फरेब देने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अल्तमिश झुकते हुए जिमर को दोनों शानों से जकड़े खड़ा कर गया। वो अब सहमी हिरासा निगाहों से रोते हुए देख रही थी। जिमर की पेशानी से खून की लकीर बह रही थी। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कैद थी। अल्तमिश से बालों से दबोच गया। तीखी आंखों में गैसो गजब था। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी अल्तमिश, मगर मैं तुम्हें दिल से कबूल नहीं कर सकी। तुम ही हो जो हमेशा मेरे ख्वाबों के बीच आए। तुम ही हो जिसने हमेशा मुझे बेबस महसूस करवाया। खुदा के लिए मुझे जाने दो, इससे पहले मैं तुमसे इतनी नफरत करने लगूं जिसकी हद ना रहे। वो रोते हुए हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। अल्तमिश इसकी सुरमई आंखों में अपने लिए नफरत के जलते बुझते शोले देख सकता था। अल्तमिश ने जिमर की कलाई पकड़े मरोड़ डाली। जिमर दर्द से बिलबिलाने लगी। वो इसे बुरी तरह हर्ट कर रहा था। जिस तरह वो इसे दर्द दे रही थी। अल्तमिश ने जिमर के बालों को सख्ती से दबोचा। जिमर को अपने सर की रगें खिंचती महसूस हुई। तुम फिरौन हो अल्तमिश, मैं तुमसे नफरत करती हूँ अल्तमिश। तुम जावियार जैसे हो। याद रखना, मैं तुम जैसे जालिम के आगे झुकूंगी नहीं। अपने बाल छुड़वाते बुरी तरह चीख रही थी। क्या जुल्म किया है मैंने और जावियार ने। जालिम सिर्फ तुम हो। वो अपनी पैंट से बेल्ट निकालकर जिमर की गर्दन में डाल गया था। जिमर की गर्दन में वो बेल्ट कस दी। तुमने कितने ही खून किए हैं। तुमने जावियार के लिए हर वो काम किया जो इसने कहा।
तुम इसके साथ हर खून रेजी में शामिल रहे। जावियार ने मेरा निकाह तुमसे इसलिए किया ताकि तुम सारी उम्र इसकी गुलामी करते रहो। वो खून हक पर किए मैंने, अपनी बका के लिए किए। अगर मैं इन्हें न मारता वो मुझे मार देते। वो इसकी गर्दन में बेल्ट डालते खींचता चला गया। मार डालो मुझे भी, मेरा खून भी तुम हक पर करोगे। अपनी गैरत को वजह बनाकर मुझे मार डालो, मैं जिंदा रहते तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। जिमर दर्द से कराह रही थी, सुरमई आंखों से आंसू बह रहे थे। शदीद खांसी का दौरा पड़ा था। अपनी टांगों पर खड़ा रहना अब इसके लिए मुश्किल था। अल्तमिश ऊपर कमरे में उठा पटक की आवाजें सुन सकता था। पुलिस इस कमरे तक पहुंच गई थी। बहुत जल्द वो दरवाजा ढूंढकर नीचे आ जाती। एक लम्हे के लिए अल्तमिश का ध्यान भटका था। वो जीनों की जानिब देख रहा था। जिमर ने मौके से फायदा उठाते अल्तमिश की टांगों के बीच अपना घुटना पूरी कुव्वत से दे मारा। अल्तमिश दर्द से बिलबिलाते लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। वो टांगों पर हाथ रख के दर्द से चीख रहा था। जिमर तेजी से जीने चढ़ने लगी। वो 5वीं जीने पर रुकी थी। मुड़ते हुए अल्तमिश को देखा। वो दर्द से दोहरा होते खूनी आंखों से जिमर को ही देख रहा था। तुम्हारे पास फोन करने की वजूहात थी, तो मेरे पास भी ये सब करने का हक था। वजह थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, न कल, न आज, और ना ही आइंदा जिंदगी में कभी। इतना एहसान करूंगी तुम पर, तुम्हारे खिलाफ FIR हल्की कटवाऊंगी। मुझे जितने भी जख्म आए तुम पर नहीं डालूंगी। वो सपाट लहजे में कहती जीने चढ़ने लगी। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, तुम जालिम औरत हो। वो कराहते हुए कह रहा था। तुम भी मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो, इट्स योर चॉइस। जिमर की सरगोशी अल्तमिश का अपने असाबों पर हथौड़े की मानिंद महसूस हो रही थी। वो जीने चढ़ते जा चुकी थी। वो खुले दरवाजे से देख सकता था। एक पुलिस ऑफिसर जिमर के गिर्द हिसार बांधे हुए था। वो इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो रो रही थी। अल्तमिश ने सबसे आखिरी जीने पर खड़े फरहाद दुर्रानी को देखा था। वो अपना कोट उतारते जिमर के गिर्द ओढ़ा रहा था। अल्तमिश धुंधलाई आंखों से इन दोनों को देख रहा था। वो आग इसी अपने सीने में लगती महसूस कर रहा था। 2 पुलिस एहलकार अब नीचे की तरफ आ रहे थे। वो मातमजदा सा दोनों हाथ चेहरे पर रख गया था। वो शायद बेआवाज रो रहा था। यूनिफॉर्म में मलबूस 2 एहलकार अल्तमिश के करीब आन खड़े हुए। इसे बाजू से जकड़े खड़ा किया। वो इसकी कलाई में हथकड़ी पहना रहे थे। जिमर वहां से जा चुकी थी। अल्तमिश का दिमाग मुकम्मल माउफ हो चुका था। इसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हो रही थी। इसे सब कुछ धुआं धुआं होता महसूस हो रहा था। इसका दिल फट रहा था। इसे अपना आप लुटता महसूस हो रहा था। वो चल नहीं पा रहा था। पुलिस एहलकार इसे थामते ला रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से जीने चढ़ते ऊपर आया। पुलिस इसे हथकड़ी पहनाए बाहर ले आई। अंदर तेजी से आग भड़क चुकी थी। वो बाहर आया तो इसने जिमर की आवाज सुनी और इसकी तरफ पुष्ट किए खड़ी थी। इसकी पुष्ट पर फरहाद दुर्रानी का कोट था। एक यही चीज थी जो अल्तमिश को जलाकर राख कर रही थी। वो अंदर बाहर से झुलस कर रह गया था। इश्मार्ट का CEO मेरा दोस्त था। मुझे यहाँ लेकर आया और फिर मुझे कैद कर लिया। ये जख्म सीढ़ियों से गिरने से आए। आग मुझसे ही लगी थी, वो फरहाद दुर्रानी से कह रही थी। वो आगे से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते एक अफसर को जिमर का बयान लिखवा रहा था। अल्तमिश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई। जिमर खान से आधा फंसाकर आधा बचाकर इस पर एहसान अजीम कर चुकी थी। पता नहीं अब कब वो एहसान उतार पाता है। पुलिस ने अल्तमिश को पुलिस वैन में सवार किया। वो अपनी खून उतरी आंखें जिमर खान पर गाढ़े रहा। वो इस पर रहम खाकर सबसे बड़ी गलती कर चुकी थी। वो बहती आंखों से मुस्कुराया था। देखते ही देखते अल्तमिश की निगाहों से आग ओझल होती गई। जिमर खान का वजूद धुंधला पड़ता गया। वो आंखें मूंद गया था। अपनी बका के लिए इसने कई खून किए, अब एक और खून इस पर वाजिब हो गया था। वो वाजिबुल कत्ल थी। असल जंग तो अब शुरू हुई थी। खसारे पा लिए थे, हर दर्द पी लिया था। अब मौत का खेल शुरू होना था। ऐसा खेल जिसमें बेरहमी उरूज पर होनी थी। तुम इसे क्यों बचा रही हो? ड्राइविंग करते फरहाद दुर्रानी ने गर्दन तिरछी करते जिमर को देखा था। मैंने कब बचाया इसे? तुम्हारे सामने तो पुलिस इसे हथकड़ी लगाकर ले गई। वो पुरसुकून लहजे में बोली थी। मगर तुम्हें इस पर सख्त एलिगेशन लगाने चाहिए थे, ताकि वो सालों जेल से छूट ना पाता। ऐसे तो वो हफ्तों में निकल आएगा। इस्मार्ट का CEO है, वो कोई मामूली गार्ड नहीं। फरहाद दुर्रानी की बात पर वो चौंकते हुए इसे देखने लगी। वो क्या इन दोनों के माजी के बारे में जानता था? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्यों गई तुम इसके साथ?
वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था जैसे वो तुम्हारा आशिक हो? फरहाद दुर्रानी के अगले सवालों पर वो पुरसुकून हुई। बस शुक्र फरहाद दुर्रानी इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। ज़मर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मेरा दोस्त था, पाकिस्तान में मुझे मिला था, तब वो स्मार्ट का सीईओ नहीं था। वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता था। मैं नहीं जानती थी। इसने मुझे जब कैद किया तभी मुझे ये सब पता चला। ज़िम्मेदारी से सब बताते विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। तुमने इस रात कमरे में इसे नहीं देखा था? इसे पहचाना नहीं था? फरहाद दुर्रानी ने जिमर के चेहरे को बगौर देखते पूछा। अगर मैं इसे पहचान जाती तो शायद मैं रैंप वॉक पर ना कर पाती, जिमर ने इस बार खुद से कहा था। फरहाद दुर्रानी तक इसकी आवाज ना पहुंच सकी थी। वो स्मार्ट का सीईओ है। वो तुम्हारे रास्ते में पत्थर बिछा देगा। वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं इसकी आंखों में इंतकाम जुनून देख कर आया हूँ। वो हारा हुआ मर्द है और मर्द अपनी हार कभी नहीं भूलता। समझो, चोट खाया मर्द जख्मी शेर की मानिंद होता है। जख्मी शेर के हमले से बचना नामुमकिन। फरहाद दुर्रानी स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए ज़मर को देखते बोला, वो मेरे रास्ते में पत्थर तो बिछा सकता है, अब मेरे रास्ते में नहीं आएगा। असली मर्द हुआ तो मुझे छोड़ देगा। ज़मर के लहजे में आंच देती तलखी उतर आई। फरहाद दुर्रानी इसके लफ्जों पर गौर करते खामोश हो गया था। अल्तमश इसके रास्ते में पत्थर तो बिछा सकता था, इसके सामने आने की जिसारत नहीं कर सकता था। जो इसके साथ करके आई थी वो इसे तलाक दे देगा। जिमर को यकीन था। होटल आने पर फरहाद दुर्रानी गाड़ी से उतर आया। जिमर भी गाड़ी से निकलते इसके मुकाबले लान खड़ी हुई। अगर स्मार्ट का सीईओ मेरे रास्ते आएगा, तुम क्या करोगे मेरे लिए? क्या तुम कुछ नहीं करोगे? क्या तुम अल्तमिश को मेरी राह में रोड़े अटकाने दोगे? वो जिमर के सवालों पर इसे खामोशी से तक रहा था। मैंने अपने लिए हर जंग खुद लड़ी और यहाँ तक आ पहुंची, अब मेरी जंग में तुम भी शामिल हो चुके हो फरहाद। मैं तुम पर इन्हिसार करने लगी हूँ और ये मुझे एक वक्त में ताकतवर बनाता है, दूसरे पल मुझे कमजोर कर देता है। अगर तुम पीछे हट रहे हो तो अभी से बता दो, मैं तुमसे कोई उम्मीद न लगाऊं। मैं अपने ख्वाब अपने बलबूते पर पूरे करूं। वह फरहाद की खामोशी पर चटक सी पड़ी थी। वो खामोशी से इसे तकता जा रहा था, एक लफ्ज नहीं कहा था। तुम भी एक मर्द ही हो जिसे सिर्फ अपने मतलब से गर्ज है, अपनी ख्वाहिशात, अपना आप प्यारा है। एक औरत क्या चाहती है ये कभी किसी मर्द ने जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर जान भी लिया तो इसने औरत की ख्वाहिश को इतनी अहमियत ही नहीं दी। मेरे साथ जो कुछ मेरे घर के मर्दों ने किया, अगर तुम भी वो करना चाहते हो अभी से बता दो। ज़िमर ने कोट उतारकर फरहाद दुर्रानी के मुंह पर दे मारा था। वो कोट इसे लम्हे थाम गया, सुकून से अपने दाएं बाजू पर डाल दिया। ज़िमर से गुलाबी आंखों से देखते आगे बढ़ गई। यकायक इसकी कलाई पर फरहाद दुर्रानी का मजबूत हाथ आन ठहरा था। वो पलटी नहीं थी, ऐसे ही खड़ी रही। तुम इसी ऊंचाई पर पहुंचोगी जो तुम डिजर्व करती हो। फरहाद दुर्रानी ख्वाब निगलता नहीं, इन्हें पूरा करता है। वो ज़िमर की कलाई छोड़ चुका था। ज़िमर खान रुकी नहीं, तेजी से आगे बढ़ गई थी। वो ज़िमर का बगौर देख रहा था। अपना कोट पहनते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। होंठ सीटी के अंदाज में गोल किए वो ड्राइविंग सीट पर आन बैठा था। पेरिस की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते फरहाद दुर्रानी की सुनहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो एक लम्हे के लिए चौंकने पर मजबूर कर देता था। वो ज़िमर खान का मसीहा बनकर आया था या मौत, कोई नहीं जानता था, खुद फरहाद दुर्रानी भी नहीं। दुबई के एक शानदार होटल में एक ग्रैंड रिसेप्शन था। वो लड़के वालों की तरफ से मधु था। वो इस वक्त स्याह रंग के डिनर सूट में मलबूस था। वो होटल के मरकजी बड़े से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जर्द सुनहरी कमकमी रोशनियों से सजा ये हिस्सा रोशन था। इसके अंदर दाखिल होते ही सबकी तवज्जो कुछ पलों के लिए खींच ली थी। स्याह रंग के कोट के अंदर स्याही रंग की शर्ट पहने हुए था। सीने वाली जेब में अटका और गुलाब भी एक पल के लिए अपनी तरफ तवज्जो खींचता था। डिमांड कपलिंग से अंदाजा होता था इस मर्द ने खुद पर बेहद तवज्जो दी है। ये तैयारी बहुत खास थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा नुमाया हो रहा था। सिन्फ मुखालिफ की निगाहें खास तौर पर इस पर मरकूज थी। इसके अंदाज में हमेशा की तरह बेनियाजी थी। स्याह के बस एक चेहरे की मुतलाशी थी। वो इस एक निगाह के लिए अपनी तरफ उठी करोड़ों निगाहें मुस्तरद कर सकता था। वो बस एक नजर देख ले वो आधी दुनिया रद्द कर सकता था। जावियार खानजादा अपने जान पहचान के कुछ लोगों से मिलता एक मेज पर जा बैठा। इसकी स्याह आंखें बेचैनी से किसी की मुंतजर थी।
दिल की धड़कन मुंतशिर थी। वो उकताई निगाहों से इस भीड़ को देख रहा था। कोई चेहरा इसके काबिल नहीं था, वो नजर भर कर भी देख सकता था, हालांकि इसने काफी कोशिश की वो खुद को बहला सके। वो चेहरा जो इसकी आंखों में अक्स बनकर उभरता था, वो इसे भुला सके, मगर कशिश बस इसी एक वजूद में थी। इन नीली आंखों के अलावा खूबसूरती हिज थी। वो अपने जेल से सेट किए बालों में नरमी से उंगलियां फेरते सामने ही खड़ी एक लड़की की तरफ मतवज्जो हुआ। बस ऐसी एक लड़की ने जावियार की तवज्जो अपनी तरफ खींची थी। वो आंखों को उंगलियों से मसलते इस पर अपनी गहरी निगाहें जमा किया था। वो अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी, सुर्ख रंग की साड़ी पहने हुए थी, बालों का मैसी सा जूड़ा बनाए हुए थी। जावियार खानजादा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसका पिछला गला बहुत गहरा नहीं था, मगर जोड़े के बायस सुनहरी पुश्त अपनी तरफ तवज्जो खींचती थी। जावियार खानजादा को अपना सीना जलता महसूस हुआ। पहलू बदलते खुद पर मलामत भी भेजी कि इस पूरे हाल में एक यही लड़की पसंद आनी थी। वो आयश मलिक से बेवफाई नहीं करना चाहता था, मगर सामने खड़ी लड़की इसकी वफाएं खरीदने की अहलियत रखती थी। वो अपनी स्याह आंखें इस लड़की की कमर पर जमा किया। वो इसकी कमर के बल गिनते आरजदा था। इस कमर पर कितने बल पड़ते हैं, ये सिर्फ इसे पता होना चाहिए था। सीने में भड़कती आग इसे जला रही थी। वो अपनी एक टांग इस तरारी हाल में हिलाने लगा। स्याह आंखें कमर के बलों से हटते इसकी पुष्ट पर मौजूद तिल पर आन ठहरी। हालांकि ये तिल इतनी दूर से ढूंढना मुश्किल था, मगर वो ढूंढ चुका था। सीने में अब भड़कते लावे जलने लगे थे। वो अपने घुटने पर अपना नीली रगों से उभरा हाथ रख गया था। दाहिनी टांग जरूरत से ज्यादा हिलने लगी थी। वो चाहकर भी अपने बदन की कपकपाहट पर काबू नहीं पा रहा था। वो जानता था ये लड़की जितनी देर इसके सामने खड़ी रहेगी, वो यूं ही तपिश ज़दा रहेगा। वो अपनी गर्दन झुका गया था, देखना ही नहीं चाहता इस लड़की की तरफ, मगर फर्क जरा ना पड़ा था। एक जहन्नुम थी जिसमें वो चल रहा था। जावियार खानजादा ने गर्दन उठाई, एक बार फिर से सामने देखा। वो लड़की इसकी तरफ चेहरा मोड़ गई थी। वो बेसांस हुआ, नीली आंखों वाली बेहिस औरत वैसे जलती निगाहों से देखते आरज़दा था। एक ही औरत ने अपनी तरफ तवज्जो खींची थी, वो भी इसकी ही बीवी निकली। स्याह आंखें कर्ब ज़दा थी, काश वो आयश मलिक न होती। सीने में आग भड़क रही थी। वो इसे देख रहा था, वो आयश ना हो। यहाँ बैठे खुदा से कितनी दुआएं कर डाली थी, हर बार की तरह दुआएं रद्द हुई। सीना छलनी करने वाली सामने खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती। फोटोग्राफर सामने खड़ी लड़की की तस्वीरें खींच रहा था, वो मुस्कुराते हुए खिंचवा रही थी। वो भी मुस्कुराया था, अपने अंदर की खोलन कम की। वो अपना गुस्सा इस्तराब आयश पर नहीं उतार सकता था। इसके लिए सारी उम्र पड़ी थी। बहुत जल्द वो इसके पास आने वाली थी। सारे हिसाब किताब संभाल कर रख लिए, अभी के लिए सब मुआफ। वो मुस्कुराते हुए इसे देखता रहा था। आरसद की एक बार फिर इसके वजूद का हिस्सा बनी से आंखों में वीरानी उतर आई। मुझसे दूर रहकर एक सजा बन चुका था। वो थी एक मुकम्मल तस्वीर की तरह इसके सामने खड़ी थी। आंखों में कोई मलाल ना था। वो एक अच्छे भले मर्द की जिंदगी बर्बाद करके कितनी खुश थी। वो अर्श की जिंदगी में आने से पहले कितना खुश रहता था। जावियार खानजादा को इस पर बेतहाशा गुस्सा आया। जावियार खानजादा ने अपनी तवज्जो हाल में मौजूद मुख्तलिफ दोशीजाओं पर मरकूज की थी। ये किसी औरत में रंग ना थे, बाकी औरतें भी रंगदार थीं। आयश के साथ खड़ी लड़की सुनहरी रंग की साड़ी में मलबूस थी, बेहद बोल्ड, आगे पीछे से आया होती। वो होंठों पर दो उंगलियां रखी इस लड़की को देखने लगा। इसे पूरा यकीन था हर मर्द बस इसी औरत को देखे जा रहा होगा। जो छुपाना चाहिए था वही दिखा रही थी। कौन कमबख्त होगा सिनेमा में आकर भी आंखें बंद करके बैठेगा। वो काफी देर तक इस लड़की को देखते रहा, मगर धड़कता दिल किसी और को देखने का ख्वाहिशमंद था। वजूद था बस इसके लिए बेचैन, आंखें थी बगावत करने को तैयार। नीली आंखों वाली बेहिस औरत के लिए वो दुनिया त्याग सकता था। से आंखें बेवफाई करने पर अपना रंग बदल रही थी। क्या बेबसी थी वो इस बेहिस औरत की से बेवफाई तक न कर सकता था। जावियार ने दूसरी निगाह आयश पर नहीं डाली थी। वो देखता तो जहन्नुम से एक बार फिर से मुतारफ हो बैठता। वो हॉल में मौजूद बाकी औरतों को देखने लगा। वो बदमजा हुआ था। एक औरत के अलावा किसी दूसरी औरत में कशिश ही ना थी। इस बात पर वो दिल से आरज़दा सा था। काश होती वो आयश मलिक से कब से जान छुड़वा लेता। आयश मलिक एक फंदा थी। वो इस फंदे को खुद ही अपने गिर्द कसता जा रहा था।
खूबसूरती का दूसरा नाम आयश मलिक थी। अब सर को झुकाना था और बस इसी दर पर आना था। सांसें टूटनी थी तो बस एक इसी आगोश में। आंखों ने वफा निभानी थी बस इसी एक वजूद से। वो फिर से आयश पर अपनी निगाहें जमा किया, दिल जलता रहा मगर आंखें ठंडी होती रहीं। वो फिर से आर्ज़दा हुआ और वो अभी तक इसकी तपिश ज़दा निगाहों पर जली ना थी। हालांकि इस पूरी दुनिया में कोई इसे ऐसे नहीं देख सकता था जैसे वो देखता था। दफान आयश की निगाहें इस पर उठी थीं। वो सांस लेना जैसे भूल गई थी। वो यहाँ भी आ गया था, ताज्जुब लाजिम था। वो इसके सामने बैठा था, पलकें तक न झपका रही थी। वो दोनों आमने सामने थे, बाकी सब स्याह था। वो दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे थे। सब कुछ धुंधला पड़ गया था। वो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आयश मलिक जानती थी वो जबरदस्ती का मुस्कुरा रहा है। वो उसकी आंखों में उतरी सुर्खी देख सकती थी। वो इसे इस लिबास में देखकर जरा खुश नहीं हुआ। वो सामने बैठे मर्द की आंखें पढ़ सकती थी। आयश इसी लम्हे एनी का हाथ पकड़े वहां से चली गई थी। जावियार खानजादा मुंह पर हाथ फेरते सामने रखे ड्रिंक की तरफ मतवज्जो हुआ। जलता सीना अब इसी मशरूब से ठंडा करना था। एडिक्शन बस आयश मलिक थी। वो सच्चे दिल से तौबा कर चुका था, नो मोर ड्रिंक्स। मगर आज एक गिलास तो पीना बनता था। इसकी बीवी को हर मर्द देखे, ऐसे में एक बेचारे शौहर को क्या करना चाहिए, वो बस यही सोचे जा रहा था। चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना इसे ही कहते हैं। वो बड़बड़ाते हुए ग्लास लबों से लगा गया। इस शानदार होटल के लग्जरी वॉशरूम में वो खड़ी आईने में खुद को देख रही थी। वो अपने जूड़े की पिनें निकाल रही थी। आयश के सामने खड़ी एनी इसे उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। इस हेयर स्टाइल को आयश ने खास तौर बनवाया था, अब इसे ही बर्बाद कर रही थी। वो बालों से पिनें उतार उतार कर चमकते फ्लोर पर फेंक रही थी। क्या हुआ है, कोई भूत देख लिया है तुमने? वो आयश की उड़ी रंग देखकर हैरान थी। वो लब भींचे अपने बालों से पिनें निकालती रही। आयश, ये क्या कर रही हो? इतना अच्छा लग रहा है ये हेयर स्टाइल। एनी ने झुंझलाते हुए इसे रोकना चाहा। पिछला गला डीप है, मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल नहीं। आयश ने लब भींचकर कहते जूड़े से खींचकर पिन निकाली। जूड़ा खुल चुका था, सुनहरी बाल पुष्ट पर बिखर गए। डीप इसे नहीं कहते हैं। एनी ने अपनी पुश्त आयश की तरफ की। सुनहरे ब्लाउज की बारीक स्ट्रिप्स थी। पूरी पुश्त बढ़ना थी। ये तुम्हारी चॉइस है, मगर मुझे डीप गले नहीं पसंद। आयश अपने बालों में उंगलियों से ब्रश करने लगी। ये कब हुआ? एनी की बात पर आयश ने इस पर तीखी निगाह डाली। एनी ने अपनी मुस्कुराहट बमुश्किल रोकी। वैसे ऐसे भी खूबसूरत लग रही हो। एनी ने आयश के चेहरे पर फैले इस तरह को गौर से देखते कहा। पता नहीं वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। आयश आईने में देखते खुद से कह रही थी। एनी इसके खुद से कहे लफ्ज सुन चुकी थी। वो कुछ भी समझने से कासिर थी। मैं इसकी जिद हूँ। वो मुझे हर सूरत दोबारा पाना चाहता है। वो एनी की तरफ मुड़ गई थी। नीली आंखों में पानी था। कौन शाहवीर? एनी के लबों से बेसाख्ता निकला था, मगर आयश के लफ्जों पर गौर करते वो साकत हुई थी। ये मत कहना जावियार इधर भी पहुंच गया है। वो इधर ही है। एनी, आयश की आवाज भर्रा गई। ओ, एनी के लब गोल हुए, आंखें सुकड़ी थी। मैं इसके साथ गुजरा हर लम्हा भूलना चाहती हूँ। वो मेरे सामने आकर मुझे वो सब याद दिला देता है। आयश ने मार्बल के स्लेब पर हाथ रख लिए। आईने में इसका खूबसूरत अक्स उभरता दिलफरेब लग रहा था। एनी ने एक पल के लिए इसे मिसमराइज होते देखा। जावियार खानजादा आयश मलिक को छोड़ ही नहीं रह सकता था। ऐसी औरत को छोड़ दे ये नामुमकिन था। कतई नहीं। एनी के लब मुस्कुराहट में ढले। आयश मलिक पर तरस भी आया था। वो जावियार खानजादा का खौफ जितना मर्जी छुपा ले, मगर नीली आंखों में वो था, चाहे खौफ की ही परछाई लिए मगर वही था। तुम इसके पास वापस चली जाओ, हो सकता है वो तुम्हें दिल से चाहता हो। एनी का नेक नियति से दिया गया मशवरा आयश को सुलगा क्या था। तुम चाहती हो मैं वो सब भुला दूं जो उसने मेरे साथ किया, सिर्फ इसलिए अब वो मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है? तब ये मोहब्बत, ये लफ्ज कहाँ थे जब मैं आस भरी निगाहों से इसकी तरफ देखती थी? वो मुझ पर हाथ न उठाए, बस यही एक चीज का मुतालबा इससे किया था। वो मुझे खाक बनाकर भी रखता कबूल था, मगर मैं इसकी मार भी नहीं भूल सकती। इसका गला भारी हो रहा था। एनी खामोशी से इसे देख रही थी। अब जब मैं दस्तरस में नहीं हूं तो वो मुझे पाकर एक बार फिर से मुझे रोंदना चाहता है। आयश तल्खी से हंसी। वैसे मैं तुम्हारी जगह होती तो जावियार को माफ कर देती। तुम मेरी जगह नहीं हो इसलिए ये सब कह रही हूँ। वो बुलंद आवाज में एनी की बात काट गई थी।
اس لیے معاف کر دوں کیونکہ وہ میری خاطر کلام چھوڑ چکا ہے، یا اس لیے معاف کر دوں وہ میرے پیچھے دبئی چلا آیا، یا پھر اس لیے معاف کر دوں وہ ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک ہے، اس کی بدصورتی میں نے دیکھی ہے، اسے میں نے سہا ہے، تم ایک تھپڑ تم اس کا گھاؤ کی، دیکھتی ہوں اس کا سحر کیسے نہیں تمہارے سر سے اترتا، تم فینٹیسی میں جی رہی ہو جو تمہیں خود کے لیے پسند نہیں، وہ میرے لیے تم چاہتی ہو، اس عذاب جیسے مرد کو میں کیوں سہوں، میں کیوں بھگتوں؟ وینی کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت حالات ایسے تھے، ایننگ نے عائش کے شانے پر ہاتھ رکھا جسے وہ جھٹک چکی تھی۔ حالات ہی انسان کو بناتے ہیں، حالات ہی بگاڑتے ہیں۔ وہ پدرانہ نظام میں پلا بڑا ہے جہاں سارے اختیارات ایک مرد کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ وہ عورت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ میں ونی میں نہ بھی گئی ہوتی وہ پھر بھی مجھے اپنے جوتوں کے نیچے ہی رکھتا۔ عائش نے تلخی سے کہا، استنبول کے ساحل پر میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ جو سلوک وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کر رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے مجھے بیلٹ تحفے میں دیتی تھی، کہا تھا کہ تمہارے گھر کے مردوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ مجھے اس بیلٹ سے قابو کر سکیں۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی عیاں ہو چکا تھا، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا مگر مجھ پر اس کی اندر کی بدصورتی عیاں ہو چکی تھی۔ وہ ہر ملاقات میں مجھ پر باور کرواتا رہا وہ مرد ہے اور میں عورت، وہ عورت جس کی کوئی اوقات نہیں۔ نکاح سے پہلے 6 گھنٹے مجھے شاور کے نیچے باندھا تھا، صرف یہ دکھانے کے لیے وہ طاقتور ہے اور میں کمزور۔ اس کے لیے طاقت مرد ہونا ہے اور کمزور بس عورت۔ عائش چپتے لہجے میں کہہ رہی تھی، جس طرح اس نے اذان کو مارا، اس پر جس طرح کا تشدد کیا تم نے نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ وہ ظالم ہے کیونکہ وہ خود کو صحیح سمجھتا ہے۔ اس نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ وہ اصل مجرموں تک پہنچ سکے۔ جو دیکھا اس پر یقین کیا، مانتی ہوں ساری سچائیاں اذان کو قصوروار کہتی تھی، مگر اذان کو جانوروں کی طرح مارنے سے پہلے ایک بار سوچ لیتا، وہ انسان ہے۔ بنی تو وہ آخری حد تھی جو میں نے اس کے اندر کے اصل مرد کو دیکھا تھا۔ وہ خاموش ہوئی، آنکھوں میں درد بھری رات اتر آئی۔ عائش نے کراہ سے آنکھیں مینچ لی۔ میں نے ہمیشہ سے خود کو شاہویر کی امانت سمجھا، مگر قسمت کے ہیر پھیر نے مجھے کسی اور کا بنا دیا۔ مجھ سے نکاح کے بعد جو سلوک اس نے کیا وہ تو کیا، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے وہ چلا گیا تھا، پورے 10 دن حویری نہیں آیا تھا۔ ان 10 دنوں میں نے صرف شاہویر کو سوچا تھا، اسے یاد کیا تھا، کیونکہ جو روپ زافیار کا دیکھ لیا تھا وہ مجھے شاہویر کو بھولنے نہیں دیتا تھا۔ مگر اس رات میرے حواسوں پر زافیار خانزادہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ پر اپنی ایسی دہشت بٹھائی کہ میں بھول ہی گئی۔ میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے، میں جیتی جاگتی سانس لیتی انسان ہوں۔ عائش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں اس ایک رات کی اذیت آج تک نہیں بھلا سکی۔ میرا غرور توڑا، میری پہچان مسخ کی، میں صرف اسی لیے معاف کر دوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو بھی ہوا اب وہ تم پر جان وارتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تم زندگی کی طرح دوڑتی ہو، وہ تمہارے لیے پاگل ہے، سیاہ آنکھیں بس یہی کہتی ہیں۔ اینی کی بات پر عائش نے اپنا ہاتھ سلیب پر مارا، سرخ کانچ کی چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں۔ وہ سلیب کو مٹھیوں میں جکڑے آئینے میں دیکھنے لگی، نیلی آنکھوں میں یاسید کے ساتھ کرب تھا، آنکھیں گلابی تھی۔ وہ کچھ بھی کر لے میرے پاس اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ اپنی جان بھی گنوا دے گا۔ عائش ملک اس کی طرف دیکھے گی نہیں۔ کل اس نے مجھے بے بسی کا احساس دلایا، اگر آج وہ بے بس ہے تو یہی اس کی ہار ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی، اسے ہرانے کے چکر میں تم ایک جنگ چھیڑ رہی ہو عائش۔ اینی نے اس کے قریب آتے کہا۔ عائش کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، اس کی آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا، زاویار کی دہشت تھی۔ وہ اسے خوف کھا رہی تھی مگر ہار نہیں مان رہی تھی۔ مجھے اس سے خوف آتا ہے، آج بھی میں اس سے دہشت زدہ ہوں، مگر میں اس کے آگے جھکوں گی نہیں۔ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولی، شاہویر اور زافیار ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے، کیا چاہتی ہو ان دونوں میں سے ایک جان گنوا لے؟ میں زافیار کے پاس چلی جاؤں گی، شاہویر زندہ رہ پائے گا کیا؟ وہ تب جان سے نہیں جائے گا؟ شاید ہو سکتا ہے شاہویر تم دونوں کے بیچ سے ہٹ جائے، وہ محبت کے لیے قربانی دینا جانتا ہے، وہ عام مرد نہیں ہے۔ اینی کی بات پر عائش زخمی سا مسکرائی، اور میں ایسے انسان کو آزماؤں گی، تمہیں ایسا لگتا ہے میں اس سے قربانی مانگوں گی؟ کس لیے؟
आयश इस्तज़ाइया हंसी, आंखें गुलाबी रहीं, वो रोने लगी थी। ओ गॉड, तुम ये सब शाहवीर के लिए कर रही हो, तुम आज भी शाहवीर से मोहब्बत करती हो। एनी के सवाल पर वो रो पड़े। रोना हिचकियों में बदल गया। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता मैं आज भी शाहवीर को चाहती हूँ कि नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे किसी मर्द का साथ नहीं चाहिए। शाहवीर मुझे छोड़कर न जाता तो ये सब ना होता, वो मुझसे निकाह कर लेता तो ये सब ना होता, वो मुझे छोड़कर चला जाता, मैं अपनी बेबसी कैसे भूल जाऊं। मुझे किसी मर्द का साथ नहीं चाहिए, मैं बस जीना चाहती हूँ। मुझे किसी खौफ में नहीं जीना, मुझे जावियार के पास वापस नहीं जाना। तो शाहवीर भी अब मुझे नहीं चाहिए। वो रो रही थी, अपने अंदर की चुभन से वो लड़ते वो रो रही थी। मेरे ख्वाब बर्बाद कर दिए, मुझे बर्बाद कर दिया। अल्लाह तुम्हें गारत करे साफियार, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। तुमने मुझे ज़ाया कर दिया, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे तोड़ा, तुमने मेरा गुरूर तोड़ा, तुमने मुझे हर मर्द से डरना सिखा दिया। मेरे सीने में अब दिल नहीं धड़कता, अब सिर्फ जख्म है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। मैं तुमसे दूर जाने के लिए सब करूंगी, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए हर हद से गुजरूंगी। तुमने मुझे बेबस किया, मैं तुम्हें बेबस कर दूंगी। वो रोते हुए कहती जा रही थी। एनी की नजरों में आयश के लिए तासुब था, हमदर्दी थी, तरस था। जिसे जागीरदार कहती थी, जालिम संगदिल कहती थी। पदराना निजाम को अपने जड़ों में बिठाए मर्द से जंग करने जा रही थी। वो तबाही मोल लेने जा रही थी। तुम जाओ यहाँ से, मैं यही रहूंगी, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। आयश ने अपनी आंखें रगड़ डाली। तुम्हें लगता है वो यहाँ तक आया है, तुमसे मिले बगैर चला जाएगा? एनी की बात पर आयश ने इसे गुलाबी आंखों से घूर कर देखा। ओके, मैं जाती हूँ। मैंने सच कहा, जो तुम्हें हजम नहीं हुआ वो आया ही तुम्हारे लिए है। देखा था मैंने इसे, तुम्हें देखते हुए। एनी ने दोनों हाथ खड़े किए तो मेरे सामने ला इल्म बन रही थी कि तुमने जावियार को नहीं देखा। आयश के लहजे में मलाल उतर आया था। वो शाहवीर और इसकी कजन थी, इन दोनों की दोस्त थी और जावियार का साथ दे रही थी। सिर्फ इस बिना पर वो अपनी पर्सनालिटी से दूसरों को सहरजदा करना जानता था। एक मर्द की खूबसूरती बस चेहरा तो नहीं होता। वो एनी को देखते तासुब से सोच कर रह गई। वो तुम्हें देखता नहीं, आंखों के रास्ते दिल में उतारता है। ऐसा लगता है वो तुम्हें आंखों से निगल रहा हो। वहां बैठे हर किसी ने तुम पर इसकी निगाहें महसूस की हैं, बस तुम ही ना कर सकी। एनी कहते वहां से चली गई थी। आयश ने झुंझलाते हुए हाथ मारकर टैप खोला। वो अपनी जलती आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। सामने से आते जावियार को देखते एनी रुक गई थी। आयश मलिक का क्या बनेगा? वो आयश पर तरस खाए या सामने से आते मर्द पर? वो फैसला नहीं कर पा रही थी। वो बारूद से टकराने जा रहा था। एनी खामोशी से जावियार के अकब से गुजरती चली गई। एनी ने तहीर से अपनी मुट्ठी में दबे कागजात को देखा। पलटते हुए जावियार खानजादा की पुश्त देखी तो ये मगरूर भी था, खुद पर नाज करने वाला, अपनी जाहिरी पर्सनैलिटी की कशिश से वाकिफ। एनी अपने हाथ में पकड़े कागज के टुकड़े को तहीर से देख रही थी। आयश आईने में देखते टिशू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। ब्रांडेड कीमती मेकअप चेहरे से उतरा नहीं था, आंखों में स्याह काजल हनूस था, लबों पर सुर्ख चमकती लिपस्टिक अभी तक कायम थी। कलाइयों से कांच की चूड़ियां उतारते वो स्याह सफेद इम्तजाज से बने मार्बल के स्लेब पर रख गई। परफेक्ट, बेहद खूबसूरत, बस ये लिपस्टिक मुझे तंग कर रही है। भारी गंभीर आवाज पर आयश साकित हुई। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई। वो इसके अकब में खड़ा था, दीवार से पुश्त जोड़े से ही देख रहा था। वो कब आया इसे खबर ही ना हो सके। तुम्हें इतनी भड़कीली लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए थी। भारी आवाज में आर्जदगी ढल गई। आयश ने रुख मोड़े से देखा। वो अपने और इसके दरमियान चंद कदमों का फासला पूर कर क्या आयश इसके दिल की धड़कन सुन सकती थी, इसके जिस्म से उठती महसूर कुन खुशबू महसूस कर सकती थी। वो अपने और इसके बीच के सारे फासले मिटा चुका था। आयश ने इसके सीने पर हाथ रखते फासले को बरकरार रखना चाहा। वो आयश की कलाई जकड़े एक झटके से इसे अपने करीब कर चुका था। वो इसके चौड़े सीने से आने लगी। क्यों ऐसी कोशिश करती हो जो तुम्हें बेबस
महसूस करवाए। आयश की कलाई मरोड़ते वो पीछे लगा चुका था। एक हाथ से इसकी कमर दबोच ली। वो जावियार की गिरफ्त में सांस भी अब नहीं ले सकती थी। दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। वो इसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई थी। इस दर्द का क्या जो तुम मुझे देती हो? वो आयश की कलाई अपने शिकंजे से आज़ाद कर क्या था। आयश को एक हाथ से अपने सीने से लगाए रहा। आयश की मरोड़ी जाने वाली कलाई जकड़े वो इसे चूम रहा था, जो इसके बेदर्द लम्ब से सुर्ख हो चुकी थी। तुम्हें तकलीफ देकर मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है, मगर जब तुम मुझे हर्ट करती हो तो मेरा दिल करता है तुम्हें खुद से भी ज्यादा दर्द दूं। तुम्हें ऐसी सजा दूं तुम आइंदा मुझे तकलीफ ना पहुंचा सको। वो उसे अपने सीने से लगाए कह रहा था। आयश की कलाई का जलता हिस्सा अपनी आंखों से लगाए हुए था। आयश अपनी मज़ाहमत तर्क कर चुकी थी। अपनी एनर्जी ही डाउन करनी थी। वो इसे नहीं छोड़ेगा। ये इसकी आहनी गिरफ्त बावर करवाती थी। तुम्हें छूने के हकूक मुझे इनायत किए गए। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे दिया क्या है? फिर हर बार ये दगा क्यों? मेरी हक तलफी क्यों? आयश की कलाई के सुर्ख हिस्से पर वो दांत काट गया। आयश सिसक उठी। ये तो मीठी सी चुभन है मेरी जान। तुम्हें साड़ी में देखकर मेरे सीने में जो चुभन हुई, तुम इससे ना वाकिफ हो। वो फिर से इसकी कलाई पर लप रख गया था। छोड़ो मुझे। वो फिर से झटपटाने लगी। जावियार का लम्स इसे अंदर तक भड़का गया था। ऐसे मत कहो कि तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें छोड़ दूं, बस तुम्हारा यही एक हुक्म नहीं मान सकता। वो आयश को स्लीप से लगाए इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम गया था। तुम मुझे हंट करती हो आयश। तुम मुझे खाइफ करती हो। तुम ही वो औरत हो जो मुझे बेबस कर देती है। मैं ख्याल किसी जिक्र में भी तुम्हें खुद से अलग होते नहीं देख सकता। आयश इसकी स्याह आंखों में जुनून देख सकती थी। आयश को अपनी रीढ़ की हड्डी सनसनाती महसूस हुई। आयश ने नखियों से इधर उधर देखा। कोई आता क्यों ना था। ये मर्द आग था। वो इस मर्द के वजूद से उठती तपिश सहन नहीं कर सकती थी। मेरे और तुम्हारे होते किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं। मेरे और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे अदद की गुंजाइश नहीं। मैं ताक को जुफ्त बनाना जानता हूँ, मगर अगर कोई तीसरा नंबर बीच में आया तो मैं इसे हिसाब से नहीं, अपने अंदर भड़कती आग से राख कर दूंगा। मैं इसे माइनस नहीं करूंगा। इसे रबड़ से मिटा दूंगा। इसे पेन की स्याही से मस्क कर दूंगा। वो इसके चेहरे को सख्ती से थाम गया। आयश इसकी तरफ देखने पर मजबूर थी। वो इसे आंखें भी फेरने नहीं दे रहा था। वो आयश को देखे गया। जब वो इसके पास हो, दूसरी तरफ अपना जहन भी भटकाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कम से कम सामने रहते तो इसकी रहे। बीवी हो मेरी, यहाँ वहाँ तुम्हें मिलने पर मजबूर हूँ। मियाँ बीवी में इतनी भी कुर्बत बंद कमरे में जचती है। लेकिन तुम फिक्र न करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं लॉक लगा चुका हूँ। वो इसकी आंखों को बारी बारी चूम गया था। आयश ने उसे एक बार फिर से खुद से दूर करने की कोशिश की। वो इसकी कलाई जकड़े स्लेब पर बिखरी कांच की चूड़ियां पहनाने लगा। जलता लम्स कलाई पर था। गिरफ्त आनी वो चाहकर भी छुड़ा ना पाए। आयश ने झटपटाने पर वह अपनी की गिरफ्त सख्त करता जाता। आयश को अपनी कलाई टूटती महसूस होती। मजाहमत करोगी तो चूड़ी टूटकर तुम्हें लग जाएगी। गिला फिर मुझसे करोगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट किया है। हालांकि जब जब तुम हर्ट होती हो सारा कसूर तुम्हारा था। जावियार की बात पर आयश की आंखों में उतरी सुर्खी गहरी हुई। मान लेता हूँ आधा कसूरवार मैं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम सजा मुझे पूरी दो। जावियार ने आयश की आंखों में गहरी होती सुर्खी को बगौर देखा। आधी आधी सजाएं सह लेते हैं, क्या ख्याल है? झुकते हुए कहा। आयश अपनी निगाहें फिर गई थी। अलबत्ता अपनी कलाई नहीं छुड़वाई थी। जबान किसको उधार देकर आई हो? कुछ तो ऐसा कहो मुझे यकीन हो। मेरे सामने मेरी बीवी ही खड़ी है। मैं किसी गैर औरत का रास्ता रोक के नहीं खड़ा। जिस तरह कोई तीसरा तुम पर हराम है, इसी तरह तीसरा मुझ पर भी हराम है। वो नरमी से कांच की चूड़ियां पहनाता रहा। आयश निगाहें झुकाए खड़ी थी। वो अपनी एक टांग इसके गिर्द लपेटे हुए था। आयश की रंगत इसके शिकंजे में सुर्ख थी। सांस तनफ्फुस था। ऐसे तीसरा मुझ पर वाजिबुल कत्ल है। अगर लाने वाली तुम हुई तो तुम भी वाजिबुल कत्ल हो जाओगे। जावियार की धमकियों पर आयश ने अपनी तनफ्फुस ज़दा भड़कती सांसों पर मुश्किल काबू पाया।
जावियार का मुंह नोच लेने को दिल चाहा, मगर बदले में वो दुगनी सजा देगा। वो मुकाबल की फितरत से वाकिफ थे। सजाएं आधी आधी कर ली। उसने आयश को वगार देखते अपनी साबका लफ्ज दोहराए। आयश खामोश रही। वो कोई अलग से लॉजिक ढूंढ लाया होगा। वो जानती थी इस मर्द के पास वापस जाने की हर लॉजिक, हर दलील रद्द थी। तुम मुझे माफ न करो बेशक, मगर मेरे पास वापस आ जाओ। तुम मुझे हर रोज ताने तिशने मारना, हो सके तो जो हाथ मैं उठाए वो भी मार लेना। इस तरह आधी सजा का मैं ठहरा हकदार। कहते हैं बदजुबान बीवी दुनिया में सजा होती है। मैं सजा काट लूंगा। तीसरी चौड़ चोड़ी भी नरमी से पहना दी। झुककर कलाई को फिर से चूम लिया। जालिम शौहर क्या होता है। आयश सुलग उठी थी। हाथ खींचा, गिरत फिर आनी हो गई। कहा ना सजाएं आधी आधी कर लेते हैं। तुम जबान की काली में दिल का काला। जोड़ी कामयाब रहेगी। जावियार ने चौथी चूड़ी भी पहना दी। आयश ने इस बार भी अपनी कलाई खींची थी। सीने पर हाथ मारकर इसे खुद से दूर भी धकेला। इस बार नीली आंखों में कहर बरपा था। वो नजरें उठाए इसे ही देख रहा था। आग अच्छी खासी लगी थी, हालांकि इसने सच कहा था। ऐसा करूं पूरी सजा मुझे ही दे दो, तो मेरे पास आकर अपनी मर्जी से रह लेना। जैसे चाहो वैसे मेरी हवेली की मालकिन भी तुम होगी और मेरी मालकिन भी तुम। मेरा जीना हराम कर देना। वो इसकी कलाई को उंगली से सहलाते कहने लगा। बेहद नरमी से हथेली सहलाई। झुकते हुए हथेली पर लब रखे। हथेली पर मेहंदी से नक्शो निगार बने थे। मेहंदी की खुशबू अपनी सांसों में उतारी। जो महक इस औरत से आए वो इसका ही एडिक्ट बन जाता था। और तुम मुझे जैसे अपना जीना हराम करने दे दोगे ना। अभी तो जीना हराम करके रखा हुआ है। न मरने देती हो, न जीने की ख्वाहिश करने देती हो। पास आ जाओगे तो जिंदा रहने की चाह में जी उठूंगा। कांच की पांचवी चूड़ी भी इसने बेहद नरमी से आयश की कलाई में पहनाई थी। मुझे चूड़ियों की खनक बहुत पसंद है, मगर शर्त ये है कलाई बस तुम्हारी होनी चाहिए। वो इसके होंठों को चूमने के लिए झुका था। आयश ने इसे पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला। चूड़ी टूटकर आयश की कलाई में लग चुकी थी। वो सिसक उठी। कहा था ऐसे मत करो। मुझसे दूर जाने की तुम एक कोशिश करती हो, मैं तुम्हें वापस अपनी तरफ खींचने की हजार। वो अफसोस से कहते इसकी कलाई के जख्म पर छुप गया था। वहां अपने जलते होंठ रख दिए। आयश इसके लम से जल उठी थी। वो मुसलसल अपनी कलाई छुड़वा रही थी। मेरे इरादे तुम्हारी जिद से ज्यादा जिद्दी हैं आयश। वो इसके होंठों पर झुक चुका था। आयश के बालों को पीछे से दबोचते एक हाथ इसकी कमर पर जमा लिया। वो आयश के लबों की सुर्खी लम्हों में चुरा चुका था। आयश ने इसके गर्दन अपने नाखूनों से खरोंच डाली। वो आयश के हर वार हर तशद्दुद का बदला इसके होंठों पर उतार रहा था। जितना वो इसे हर्ट कर रही थी वो दुगना इसे हर्ट कर रहा था। आयश ने सिसकते हुए हर मज़ाहमत तर्क कर दी। वो भी पुरसकून हुआ था। आयश के लबों को अब नरमी से छू रहा था, जैसे हर जख्म का मदावा कर रहा हो। वो काफ़ी देर तक इसके होंठों को चूमता रहा। आयश अब साकत सी इसके हिसार में खड़ी थी, बिना कोई हरकत किए। जावियार खानजादा ने धीरे से इसे अपने हिसार से आज़ाद किया। नरमी से इसे स्लीव के साथ लगाया। ज्यादती कर जाती हो तो मेरे साथ भी, और खुद के साथ भी। आयश ने सुर्ख होते लबों को गहरी निगाहों से देखते उसने आईने में खुद को देखा। गर्दन पर लंबी लंबी नाखूनों की उभरी खराशें थी। मुझे अफसोस है तुम्हें यह जख्म देने का। वो इसके लबों पर नरमी से अपनी उंगली रख गया था। आयश सिसक सिसक कर रो दी थी। ये भी ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। खुद देखो मेरी गर्दन का क्या हाल किया है। बीवी के होंठों को चूमने की ये सजा तो नहीं होती। वो इसके आंसुओं को देखते गहरी सांस ले कर रह गया था। आयश स्लेब के साथ लगी रोती रही। तुम्हें जख्म इसलिए दिया ताकि तुम मुझे आइंदा यूं ना चटको। आज माफ कर देता तुम हर बार यही करती। जावियार ने इसके रोने पर जब्त वजाहत दी। इसकी वजाहत पर आयश का दिल खून हुआ। वो यूं ही रोती रही। बीवी हो मेरी, तुम्हारे पीछे ऐसे फिरता हूँ जैसे पराई औरत होती हो। ऐसे तड़पता हूँ जैसे तुम लैला मैं मजनू। वो इसके रोने पर चिल्लाया था। मैंने हर कोशिश करके देख ली, अपनी गैरत को भी सुला दिया, तुम्हें छोड़ने का भी सोचा,
दूसरी औरतों के मुतालिक सोच कर भी देख लिया। अपने काम से इंतहा की मोहब्बत थी। खुद को अपने काम से इश्क करने पर मजबूर किया। इसी काम से मुझे नफरत हो गई, हर इस चीज़ से नफरत हो गई जिसका ख्याल भी मुझे तुमसे दूर लेकर जाता है। बस तुमसे नफरत ना कर सका। मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं, मुझे अपने इसी दिल से शदीद नफरत है जो मेरे नहीं तुम्हारे ताबे हो चुका है। बताओ मुझे क्या करोगी मैं? वो आयश को शानों से जकड़े गुर्राया। से आंखें खून छलका रही थी। आयश इसे खामोशी से देखती रही और इसकी स्याह आंखों में बेबसी देख सकती थी। वो अपने ही जज्बों से हारा लगता था। बीवी हो मेरी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम यूं मुझसे ला ताल्लुक रहो। मेरी निगाहों से दूर रहो, मैं तुमसे दूर रहूं और तुम दूसरों की निगाहों की दस्तरस में रहो। मैं गैर रहूं और गैर तुम्हारे अपने हो जाएं। जावियार के हाथों का दबाव आयश के शानों पर बढ़ता गया। वो सांस रोके से देख रही थी। से आंखें सिर्फ वार फतकी नहीं लुटाती थी, वो कर्ब ज़दा भी थी। ये आग तुमने भड़काई है, तुमने मुझे सुलगाया, तुमने मुझे पागल कर दिया। मैं सो नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है मैं आंख झपकाऊंगा तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। वो स्याह आंखों में खौफ देख सकती थी, ऐसे खोने का खौफ। मैं तुमसे दूर रहने को तैयार था। क्यों इस कागज के टुकड़े पर दस्तखत किए जो तुम पर से मेरा हक खत्म कर सकता है? तुमने मेरे अंदर के खौफ को हवा दी है। वो उसे शानों से जकड़े अपने करीब कर गया था, बेहद करीब, अपनी धड़कनों से भी ज्यादा करीब। वो फिर से जावियार के सीने में आन समाई थी। वो आयश के गिर्द अपने दोनों बाजू लपेट गया था, इसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। ठीक है, मैं अहद करती हूँ, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स नहीं लूंगी, मैं तुम्हें कभी दूंगा ही नहीं। वो आयश की साइड गर्दन चूमते इसकी बात काट क्या था। जो अहद करेगा बस वही करेगा। उसने भी अहद ले लिया था। मेरा मतलब है मैं तुमसे खुला नहीं लूंगी। आयश के लफ्ज टूटे थे। उसके अगली हरकत पर वो मुठ्ठियां दबोच गई थी, सांस फूल गई थी। जावियार ने बेहद गुस्ताखाना बेअदब बनकर शरारत की थी। आयश मचल उठी, रंग दहक कर कंधार हुई, पूरे बदन से शरारे फूटे थे। वो जानबूझकर ये सब कर रहा था, इसे बता रहा था वो इस पर कितना हक रखता है। आयश को वो मसीद सख्ती से खुद में भींच गया। हाथ कहाँ से कहाँ जा पहुंचे। बीवी हो मेरी, तुम्हें लगता है तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे खुद से दूर रहने पर मजबूर कर सकती हो? अगर तुम मेरे पास रहोगी मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम रोगी तड़पोगी, मैं तुम्हें रोता तड़पता देख लूंगा। तुम धुतकारोगी, मैं सह लूंगा। मेरे लिए तुमसे दूर रहना सबसे मुश्किल है। मुझे अब खुद से दूर मत जाने मत कहना। वो इसे खुद में भींचे भारी आवाज में कह रहा था। आयश इसके हिसार में बेसांस थी। तुम्हारे इनकार को मैं इकरार में बदल लूंगा, तुम्हारे धुतकार को पुकार में बदल लूंगा। तुम नफी करोगी, मैं जमा करूंगा। एक वक्त आएगा तो मुझे नफी नहीं कर सकोगी। मर्द हूं मैं, सब कर सकता हूँ। तुम्हारे दिल को भी बदल सकता हूँ। औरत हो तुम, एक दिन पिघल जाओगी। मेरी मोहब्बत तुम्हें बेबस कर देगी। कितने दिन नफरत करोगी? एक दिन, एक साल या फिर एक सदी? मैं तुम्हारे लिए कई सदियां इंतजार कर सकता हूँ, मगर तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं अब तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तुम कोई भी अहद ले लो आयश, अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। वो इसे खुद से सख्ती से लगाते ही जा रहा था। आयश की गर्दन पर इसके लम्स के सुलगते निशान बढ़ते जा रहे थे। वो इसे कमर से थामे इस पर जैसे अपना वजन डाले हुए था। वो तो अपना बोझ भी सहार नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। तुम मेरे साथ जा रही हो, तुम मेरे पास आ रही हो, बस। बाकी के अहद व पैमा आप बंद कमरे में करेंगे। वहां मैं तुम्हारी हर बात भी सुन लूंगा, मान भी लूंगा। वो क्या कह रहा था? आयश कुछ भी प्रोसेस करने के काबिल नहीं रही थी। वो इसे अपने साथ मजीद शिद्दत से लिपटा गया था। दोनों बाजू इसकी कमर पर ऐसे बांध लिए अब दोनों के बीच हवा भी नहीं आ सकती थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।